Hello, good evening, everyone. Sir, am I audible? Yes, ma'am. Oh, okay. Within 2 minutes, we will start with our lecture. Let's wait for others to join the meeting as well. Till that, there is one announcement that Prasad sir had shared one Google form for attendance. So it's a humble request that please submit your attendance as quickly as possible so we can resume the lecture. Within 2 minutes, we will start the lecture. So please text your friends to join the lecture as early as possible. Prasad, can I start the lecture? Hello, Prasad. Okay, guys. First of all, I'll give you those who have not unmuted themselves, please unmute yourself. First, yeah. Ma'am, can you Hello. please raise up your volume? Raise my okay, fine. Yes, ma'am. Now I am audible. Now I am audible. Can you Okay, speak that's great. a little louder? Yeah, sure. I will definitely. Yes, ma'am. Saga, Thank just you. tell me Thank you. now I am audible. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So first of all, I'll introduce as I'm conducting the lecture for the first time on your bench. I am actually a cost accountant. Then I have done MCOM. Then I have done MA Economics. I have also cleared the NET exam. And right now I'm pursuing PhD on the understanding the financial behavior of the cooperative banks. So basically, you can call me Mrudula ma'am. And before we will start with the lecture, we will make two rules, very simple rules. First, you will ask me a lot of doubts related to the subject.
don't feel shy while asking the question. And I will stick to very lucid, simple English. And still, if you have any problem while understanding the concept, you are having one annotation called raise hand. So if you have any question, if you have not understood the concept at all, you can just raise your hand by clicking on one of the annotation. And if at somewhere if you are thinking कि मैम नहीं ये हमें ना हिंदी में समझाओ, feel free to say this also. I will explain it in Hindi first and then we'll have a discussion probably in English, because though I have tremendous respect for my native language, Marathi, my Hindi language, but in day-to-day business life, we have to stick to English only. So, are you clear about the rule? Do not Yes, ma'am. sit with Yes, ma'am. doubts in the class. Do not sit with doubts at all. You can ask me 100 times. I am there to solve your queries. No problem at all. Okay? But the thing is, I am also using Zoom for many days. So I know what you people may do, like while attending the lecture, simultaneously WhatsApping some text to the friends. So I'm just saying here, don't do it, because we are going to have a very interesting subject, which is an international business economics. And from the first day, typically going by the contents of the subject, let's have the overall idea about what do you mean by international business economics. Because हमें पता है कि इकोनॉमिक्स का एक मतलब हमने रेस्ट्रिक्ट किया है माइंड में कि इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होगा भाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई, दैट्स इट. इकोनॉमिक्स का मतलब लॉ ऑफ डिमांड है और लॉ ऑफ सप्लाई है. बट दैट इज ट्रू, दैट इज ओके फॉर ओनली 11th and 12th standard. And I hope you are not into the 11th and 12th standard. You are in the second year. Ma'am. Yeah, Yes, ma'am. that's great. That's great. Yes, ma'am. So instead of going by chapter name कि अरे भाई हमें ये सीखना है हाँ इस chapter में, let's quickly go through the concept by discussing the live cases. Now I'm going to share the PPT with you. Just let me know whether you are having my PPT before Yes, ma'am. Yes, before ma'am. you We are getting having. my PPT. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's great. That's great. So the thing is, guys, let's begin. By the way, okay, we'll speak about it later. Let's go to the next. Now, let's look at certain situations, guys, we are going through last 3 months, because हम सब परेशान हैं, सब परेशान हैं. पहली सिचुएशन क्या हुई थी? There is a ban on 59 Chinese apps. आप मुझे बता सकते हो guys कि कौन से apps totally banned हो गए ये 3-4 TikTok. months में? हाँ, आपका फेवरेट हेलो, यस, Hello. एंड Share it. या Cam scanner. शेयर इट. सही Cam बात है. scanner. UC browser. Prominently, exactly, prominently, UC guys, we browser. are using TikTok, UC browser, then Cam scanner. मतलब मेरे जैसे टीचर लोग तो Cam scanner बहुत यूज करते थे. Yes. बट ठीक बात है कि टिकटॉक बंद हुआ. वी हैव एक्सेप्टेड वेरी पॉजिटिवली कि नहीं, हमारे देश के लिए हमें ये एक्सेप्ट करना है. एवरीवन हैज एक्सेप्टेड. बट गाइस, क्यों किया होगा ये ऐप बैन? सिर्फ झगड़ा हुआ इसलिए बैन किया, ऐसा लगता है आपको?
नो मैम, प्राइवेसी नहीं। इशू No, का। ma'am. नो मैम। तो फिर क्यों किया? हमारी जो पर्सनल Guys, you need to इंफॉर्मेशन थी stick. वो हाँ, डेटा, जो हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन थी वो जी। डेटा शेयर सकते थे वो अपनी गवर्नमेंट के साथ, और उसका मिसयूज भी हो सकता था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारी एप्लीकेशन जैसे जीपीएस हुआ या पर्सनल इंफॉर्मेशन हुई, वो सबसे ज्यादा चाइनीज ऐप जी। ही मांगती है और कंट्रोल करती है। जी। गाइस, जो आपने कहा, आई गेस अनघा ने आंसर दिया मुझे। No, किसने no, आंसर ma'am. दिया अभी I मुझे? was not. मैम प्रियंका शर्मा। अच्छा, सॉरी प्रियंका, बट जो प्रियंका ने आंसर दिया वो सबसे सही था कि फॉर गाइस कैन यू mute yourself when you are not Somebody, talking yes. because there are some differences. Thank you. So प्रियंका ने जो आंसर दिया, that is one of the reasons कि मैम security issues हुए, but apart from security issues there is one economical reason. अभी आप तो यंगस्टर्स हो, कॉलेजियंस हो, सो मुझसे ज्यादा बेहतर आप टिकटॉक का यूज कितना होता है ये जानते हो. एवरीबडी इज यूजिंग टिकटॉक एंड आपने कभी सोचा है कि आई एम डाउनलोडिंग द ऐप एट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? आर यू पेइंग Yes. एनीथिंग टू टिकटॉक? नो. Still, No. TikTok is giving you services. Then कभी आपने सोचा, कभी आपने पूछा कि TikTok, मैं तो आपका ऐप फ्री में डाउनलोड करती हूँ या करता हूँ, why you are giving me free services? Guys, जो मैं आपके घर में काम करने के लिए आती है ना, अगर उसको पगार नहीं दिया ना, आपने सैलरी नहीं दी, तो वो अगले मंथ काम करेगी? No. नो नहीं। Then why TikTok is giving you a lot of services? One reason, जैसे आपने बोला कि data, they were collecting all the data from us. And the second thing, जो भी आपका डेटा वहां पे जाएगा, चाहे आपके ईमेल एड्रेस हो या सोशल अकाउंट के डिटेल्स हो, that can be used for the marketing as well. मतलब वो पूरा का पूरा डेटा they may sell to anyone else, and the company which is purchasing the data can use the same for marketing. मतलब whatever you are getting at free of cost, it means indirectly or unknowingly, guys, you are giving something return which is more valuable. और वो भी इंडियन ऐप था नहीं था. मतलब आप अमीर किसको बना रहे थे? इंडिया को बना रहे थे टिकटॉक वीडियोस बना के. चाइना. मतलब दूसरे किसी कंट्री को आप बहुत अमीर बना रहे थे. सो इनडायरेक्टली आपने एक इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन किया थ्रू टिकटॉक. बात समझ में आ गई? यू मे से मैम वी हैव नॉट स्पेंड अ सिंगल पेनी ऑन इट. अरे भाई, बट यू हैव गिवन द डेटा व्हिच इज वैल्यूइंग मोर देन whatever you may pay for the app. You have given maybe $1 million trillion data. You never know, because the population of the India is huge and everyone was a TikTok star. So indirectly we have entered into the inter-country transaction. So guys, थोड़ा इंट्रो किया मैंने. जब भी आप कोई इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन करते हो इंटर कंट्रीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंट्रा कंट्री. इंट्रा कंट्री क्या होगा? इफ आई एम सिटिंग इन महाराष्ट्र एंड somebody sitting in Karnataka, that is intra country, between the states. But when I am sitting in India and if you are sitting in the USA, that is inter country. So जब भी हम कोई इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन करते हैं, इकोनॉमिकल मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, that is the part of international business economics. अभी दूसरी सिचुएशन पर डिस्कशन करते हैं. Everyone is waiting for the vaccine. क्या लिखा है मैंने? परसों की न्यूज है. Serum Institute going to manufacture 100 crores doses of vaccine. मतलब अगले 6 महीने में Serum Institute will manufacture 100 crore doses. Of course, with the help of the Oxford University. Guys, but what do you feel? ये 100 crore doses
पूरे के पूरे इंडिया में यूटिलाइज होंगे ऐसा लगता है आपको? No. डेफिनेटली नॉट गाइस। आप शायद याद भी होगा कि when everyone was talking about the hydrochloroquine medicine, we were the only country which is supplying that hydrochloroquine across the world. Yes. सही बात है ना? Yes. बहुत सारे कंट्रीज को हमने सप्लाई किया, फ्री ऑफ कॉस्ट किया। क्या लगता है आपको? No. सब्सिडाइज रेट में किया हो, लेकिन अगेन इट इन्वॉल्व सर्टन अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस विद अनदर कंट्रीज आल्सो। थर्ड मैंने क्या लिखा अभी, मतलब पहले जो दो एग्जांपल्स मैंने दिए उसमें ट्रांजैक्शंस था, बहुत थे, इन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज है। अभी लास्ट जरा पढ़ो क्या लिखा है मैंने लास्ट में, इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोना कवच पॉलिसी बाय इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज अंडर द गाइडलाइंस IRDA। इससे बात करने से पहले आप मुझे बताइए कि आर यू अवेयर दैट कोरोना कवच पॉलिसी ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी is now available and it is brought by all the insurance company under the guidelines given by government? आपको पता है ये कोरोना कवच आ गया है ऑलरेडी? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So guys, if yes, please take the benefit of it. लेकिन क्या ये इंश्योरेंस किसी यूएसए के सिटीजन को मिलेगा? नहीं। The person who is sitting in USA, क्या ये परचेस कर सकता है कोरोना कवच? No, ma'am. Definitely not. The person who is sitting in India only can purchase this कोरोना कवच। अपना वो सम एश्योर्ड करेगा, प्रीमियम पे करेगा, उसके रूल्स फॉलो करेगा, एंड जब अगर क्लेम करने की नौबत आए, आई ऑलवेज एवरीवन शुड स्टे हेल्दी, किसी पर ये नौबत नहीं आए, if somebody claim it, he can claim the same. So इस कोरोना कवच पॉलिसी में कोई भी इंटर कंट्री ट्रांजैक्शन आपको लग रहा है? No, ma'am. It's not. This transaction is happening, or this transaction is concluding between the citizens of India only. So can I say this economical transaction as international? Definitely No. not. So guys, one thing is very much clear. When there is any economic transaction between the two countries, that will be the part of international business economics. अभी ये जब मैं transactions बोल रही हूँ, तो उसमें क्या क्या आ सकता है देखिए। थोड़ा फास्ट नहीं हो रहा ना बच्चों? No, No, ma'am. नहीं समझ मैम। रहे हो ना? No, ma'am. Pace No, ma'am. से करना, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल डरना नहीं है। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो इमीडिएटली पूछो। फील वेरी फ्री टू आस्क मी द क्वेश्चंस। ओके, सो द थिंग इज ट्रांजैक्शन, आई एम कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शंस। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज करते हैं, कुछ भी कोई भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर उठाओ, ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स दिखाई देंगे आपको। But what do you mean by actual financial transactions or economical transaction? Number one, trade. Trade का क्या मतलब है? Either you are selling something to the foreign land, जिसको हम बोलते हैं export, or you are purchasing from the foreign land, जिसको हम कहते हैं import. So economical transaction will include the trade also. When you are exporting something, you will get the foreign currency, which is crucial for our country. And when you are importing something, you land up in paying the amount in the foreign currency, right? So देखा जाए तो import ज्यादा होना चाहिए या export ज्यादा होना चाहिए? Ma'am, can you Export. please repeat once? Sure. मैंने ऐसा कहा कि what are the types of economical transaction? First मैंने कहा trade. Trade में क्या आएगा? Either we purchase something from the foreign country, which is called as import, or we sell some to the foreign country, which is called as export. जब हम कुछ import करते हैं, we land up
in paying the amount in foreign currency, say dollars. And when we export something, we receive the foreign currency, say here dollars. So which will be the favorable trade? हमें ज़्यादा import करना चाहिए या export करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए। Export. Very good. So एक point पे हम सब clear है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा export करना चाहिए। अभी common sense की बात है. It is not necessary that we should go through the data only. But जितनी आपको समझ है, जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आपके हिसाब से हम ज़्यादा क्या करते होंगे? Import. Unfortunately, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि yes guys, your answer is correct. But I would be more happy कि एक दिन अगर मैं ऐसे बताऊँ कि no guys, your answer is wrong and हम expect ज़्यादा करते हैं. Yeah, I will be very much happy, and we will be having a very surplus in India's profit and loss account. So let's work for it, not pray, but let's work for it. So पहला तो हो गया ट्रेड, दूसरा है guys इन्वेस्टमेंट्स. जी हाँ, जब कौन सी भी फॉरेन कंपनी आपके इंडियन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है या आपकी इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इकोनॉमिक्स. क्यों? क्योंकि देयर इज इनफ्लो ऑफ कैश एंड देयर विल बी द आउटफ्लो ऑफ कैश एज वेल. तो अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल मैं आपके सामने रखती हूँ. I guess everyone is praising, appreciating you during the lockdowns. क्योंकि जो बोर्डम है लॉकडाउन का, वो उसमें सहारा तो जियो का ही था. 2 GB data per day, 1.5 GB data per day. Based on our requirement, we have recharged our mobile phones and we have survived through the lockdown. Am I right, guys? वरना Yes, तो बहुत ma'am. बड़ा प्रॉब्लम हो जाता. फ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, कैसे बात करेंगे. जस्ट थिंक कि अगर 2010 में ये लॉकडाउन बैंग क्या करते हैं हम लोग. मतलब आई कैन नॉट जस्ट इमेजिन कि क्या होता है यार. कि तब तो आई डू रिमेम्बर कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज एंड मेरे पास वो डब्बा वाला मोबाइल था. इंटरनेट क्या, उसमें सिर्फ इनकमिंग आउटगोइंग और वो एक बटन पे 3 लेटर्स रहते थे ना. मतलब अभी अगर मुझे सी टाइप करना है तो वो एक ही बटन 3 बार प्रेस करना पड़ता था. वो डब्बा हम यूज कर रहे थे. एंड तब अगर लॉकडाउन हो जाता तो हेल्पलेस हो जाते. बट थैंक गॉड जियो इज विद अस. यस यस बेटा. तभी यूजुअली ज्यादा खेलते थे ना मैम. यस, स्नेक गेम और वो एक बाउंस गेम रहता था. Bounce game. कलर्ड. Right. Yeah, so the nostalgic With red days, but still I think Karan, sorry, कि thank God तब लॉकडाउन नहीं आया, क्योंकि बहुत लॉस हो जाता हमारे पढ़ाई का, हमारे काम का. एंड जो घर बैठे बहुत सारे लोग काम कर रहे, सैलरी भी नहीं मिलती क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं मिलती तब. सो द थिंग गाइज, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स मेड इन जियो प्लेटफॉर्म्स. वैसे अगर मैं बात करूँ तो आपके स्क्रीन पे भी आया है कि फेसबुक और गूगल ने जियो में इन्वेस्ट किया. आर यू अवेयर अबाउट दिस न्यूज? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 22nd April, Yes, on ma'am. 22nd April, Facebook invested around 43,000 crores for 9.99% stake. Yes, Poonam. मॅम प्रतीक्षा. Yes. Yeah, Pratiksha. मॅम आवाज ब्रेक होतो तुमचा, मध्ये ऐकू येत नाहीये तुम्ही काय बोलत. तुम्ही रिपीट कराल का परत? Okay. Hello. Am I हा audible? मॅम. येस Okay. मॅम. Yeah. I was just talking about the investments made by the Facebook and Google into the Geo. Facebook has promised to invest around 1,000 crores for 9. Somebody's voice is distracting me. Please go to the mute. Somebody is distracting.
Please turn on your mute option. Come on. Please turn on your mute. Thank you. So the thing is, I was talking about the investment made by the Facebook of around 43,000 crore for the stake of 10% share, and by Google of around 33,000 crore for the stake of 7.73%. Guys, this has happened for the first time, that as you are aware, कि Facebook and Google are both actually competitive. Facebook और Google competitor है एक दूसरे के, right? फिर भी Yes, in a ma'am. geo platform they agreed to work together. अभी आप समझो, ये दो कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट कर रही है अराउंड 76,000 करोड़. दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं. क्या देखा होगा उन्होंने जियो में? Why they are investing so much money in the Jio platform? Why they are bringing so much of cash? और वो भी Reason किस is दौरान? Yeah, yes, Karan. Yeah, I'm waiting, and feel free to give the answers. Ma'am, like in India, there are many Jio users, like Correct. all over India, and Facebook and Google must have, like, they have thought that it is good to invest in Jio, Guys, मैं and आपको it is एक very बताती connected हूँ. to each and every Indian citizen. Yes, guys, मैं अभी आपको बताती हूँ. Even I'm using the Jio network only. When it was introduced 2 years back, I remember कि सब फ्री दे रहे थे. कॉलिंग फ्री, मैसेजेस फ्री, ये फ्री, वो फ्री. एंड धीरे 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 उन्होंने क्या किया? जियो से पहले कितने टेलीकॉम्स कंपनीज थे हमारे यहाँ पे, याद है आपको? यू मस्ट बी इन 11 और 12 स्टैंडर्ड. नाम बता. जियो के पहले कितने कंपनीज थे? यूनिनॉर था, टाटा डोकोमो, टाटा इंडिकॉम, डोकोमो, इंडिकॉम, एयरटेल आइडिया, एयरटेल. करेक्ट, एयरसेल था. सही बात है. सो एटलीस्ट बीएसएनएल तो है ही हमारा, राइट? रिलायंस कम्युनिकेशन भी था, एमटीएनएल था. सही बात है. यस प्रीतेश, सही बात है. नाउ आफ्टर जियो कितने दिख रहे हैं भाई हमें कंपनीज? Now we can count on just fingertips. We can count on in just fingertips. One is BSNL, one is the other one is Jio, then Idea, Vodafone, Airtel. Strong companies अभी सिर्फ 4 ही बाकी रह गए. So guys, अभी तो 4 सब्सक्राइबर्स हैं. और you must have seen कि एयरटेल का कार्ड है फिर भी जियो होगा, आइडिया का कार्ड है फिर भी किसी के पास जियो होगा. सो वी कैन से जितने मोबाइल के सब्सक्राइबर्स हैं लगभग सभी का डेटा जियो के पास है. यस. डू यू एग्री विथ मी? यस मैम. लगभग सभी का डेटा जियो के पास है. You are downloading Jio magazine, you are downloading Jio TV, you are downloading Jio cinema. Why? Because you are getting free. मुझे ये मूवी देखना है, ओके जियो सिनेमा पे है, डाउनलोड करो. डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसे आप फेसबुक पे अपना प्रेफरेंस चूज करते हो ना बेटा, वैसे ही आपके पे कहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है. एंड मैंने हमेशा कहा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल. आपको याद होगा पिछले जमाने में ऑयल जिसके पास ज्यादा रहता था वो सबसे ज्यादा अमीर होता था. अभी क्या हुआ है? जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है, डेटा का मतलब मैं इंटरनेट की बात नहीं कर रही, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिटेल्स, द रिकॉर्ड्स ऑफ द पीपल. एंड बीइंग अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ डेटा.
and directly indirectly we have submitted all the data. आधार से भी लिंक किया, चलो सबसे लिंक किया, सब कुछ किया, and ultimately who is getting the fortune? Indian company is getting the money, fortunately, but they are welcoming Facebook. Facebook ऐसी कंपनी है कि जिस पर बहुत सारे केसेस हो चुके हैं ऑलरेडी अबाउट द डेटा ब्रीच. आपको याद होगा कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का बहुत बड़ा केस भी हुआ था, राइट? सो एनीवेज we have welcomed 76,000 crores within a period of just 3 months. और ये मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स लिए. मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप जियो प्रेस रिलीज पे जाओगे तो starting from 22nd April to till today, around 10 to 20 companies have already invested in the Jio. मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 कंपनी के नाम लिखे टू हाईलाइट कि देखो कि कैसे 2 कॉम्पिटिटर्स ने इन्वेस्ट किया हमारे इंडियन कंपनी में. Are you getting it? So at the end of the lecture you can go to the ऐसा गूगल सर्च पे टाइप करना जियो प्रेस रिलीज और आप लिस्ट देख सकते हो कि कितने सारे कंपनीज ने इन्वेस्ट किया और उसमें से एक भी कंपनी इंडियन नहीं. All foreign companies are investing in Jio platform. All foreign currency is coming into the India, and that should analyze such transaction for understanding the foreign direct investment, which is a very good part of international business economics. So, मुझे ऐसा लगता है कि instead of going by the bookish definition कि भाई define economics, define types of economics, what do you mean by international economics, मैंने थोड़ा उल्टा सोचा कि पहले cases देखते हैं which are very near to our heart and let's understand from it and then let's define it in our own words. मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपको समझ में आया है कि हमें क्या पढ़ना है. सब्जेक्ट में हमें सिर्फ व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स नहीं सीखना है या स्टेट द लॉ ऑफ डिमांड, स्टेट द लॉ ऑफ सप्लाई, ये नहीं सीखना है. उससे आगे जाके द ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कंट्रीज, द इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कंट्रीज and the impacts of such transactions on the GDP of the economy, on the growth of the economy. बहुत सारे theories हमें सीखने हैं and I will try to make it more interesting. क्योंकि मेरे लिए तो सब इजी था कि भाई डेफिनेशन ले लो, पीपीटी में कॉपी कर लो और चलो डिस्कस कर लो, बट दैट कुड बी अ बोरिंग लेक्चर, नो. तो इससे अच्छा है कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ें, केसेस से पढ़ें एंड देन वी विल रीड द डेफिनेशंस इन द बुक इटसेल्फ. आज मुझे आपसे एक राय चाहिए. मुझे पता है गाइस कि 10 minutes बाकी है. Please don't start with the drawing annotation. Thank you for the drawings, whatever you are making on the PPT slides. But I'm very much aware कितना टाइम बचा है. 10 मिनट बचे हैं और मुझे आपसे फीडबैक चाहिए गाइस. ये टेक्निक आपको अच्छी लगी कि पहले केस देखेंगे, एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल गो टू द डेफिनेशंस, या आपको मेथोडिकली जाना है? नहीं मैम, दिस इज रियली गुड. दिस इज गुड. सो शैल वी Yes, स्टिक टू ma'am. This इट? is interesting. यस मैम. ओके. अभी जैसे मैंने कहा कि लास्ट 10 मिनट है. हाँ, यस, हेलो, आई गेस somebody was trying to say something. Hello. Okay. Anyways, now as these are the last 10 minutes we are having, so as a last slide, I am giving you the few details about the actually contents of your syllabus. मैंने जानबूझकर लास्ट 10 मिनट में लिखा. अभी आपको कुछ मतलब इतना टेंशन नहीं आएगा देखकर. इंटरनेशनल ट्रेड, अभी आपको समझ में आया है एक्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड.
इस इंटरनेशनल ट्रेड में बिल्कुल पढ़ने की बात नहीं है। वेरियस थेरीज हमें पढ़ने हैं। बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के नाम सामने आ रहे हैं। जब मैं पढ़ रही थी एमए इकोनॉमिक्स गाइस, तब मुझे इकोनॉमिस्ट के नाम देखकर ऐसा लगता था, अरे ये नाम है या कोई गालियां दे रहा है। क्रुगमन, रिकार्डो। So, but I started making joke out of it, and slowly and steadily I started remembering it, because I personally believe that true teacher should be a good learner. So I perfectly understand your problems also. So don't worry, हम ये सारे theories पढ़ेंगे and बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। लेकिन रिकार्डो थ्योरी, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी एंड क्रुगमन्स थ्योरी ये अभी भी एप्लीकेबल है। सो हमें बहुत ध्यान देना होगा इस पर, और आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जो भी कुछ पीपीटीज हम बनाएंगे, मैं बनाऊंगी, वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि these PPTs are made for you and you have every right to use it. No problem at all. हेलो Okay? मैम। Yes, Sagar. मैम सागर। मैं बोला ना कुछ टेंशन मत लो मैम। टेंशन इस बात का जब हम जाते हैं लिखने जी, इकोनॉमिक्स का जी, पेपर, तो उसमें जी, क्या होता है, ये जो अभी सब थियरीज है अलग जी, अलग, ये लाइक रिकार्डो हो गया, बाकी जी, को भी है, तो वो हेक्सर। मैम जब एग्जाम लिखते हो तो कंफ्यूज हो जाता है। वो थियरी जो लिखते हैं नाम, वो पूरा जी, जंबल हो जाता है। मतलब इंट्रा हाँ, इंडस्ट्री ट्रेड को हम लोग अलग ही लिखेंगे, मतलब वैसे होता है। तो एक ट्रिक बताओ ना तब कैसे। अब बिल्कुल बताऊंगी। क्या करते हैं हम लोग, जब हमारी 3 थेरीज हो जाएगी ना सागर, तो we will मैम make a comparative table, right? Even I will यस share the notes with you. और उसमें यस क्या याद रखना है, और always remember guys कि जितना हम लेक्चर एंजॉय करेंगे ना, तो मैंने अभी आपसे छट से बता दिया कि यार व्हेन आई वाज लर्निंग द सेम, मुझे ये तो गालियां ही लगती थी, एंड दैट इज द मेन रीजन कि आई हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस, और वो ध्यान में ओके रहने लगा। तो सागर सीरियसली ट्रस्ट मी, आई नो आई एम कंडक्टिंग द लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट जैसे जैसे हमारी थेरीज आगे चलती जाएगी ना, वैसे वैसे यस मैं आपको बताऊंगी कि रिकार्डो की थ्योरी है, उसमें कौन से वर्ड्स याद रखने हैं, एंड विद द यस हेल्प ऑफ दैट हाइलाइट्स यू कैन इजीली राइट द थ्योरीज। क्योंकि ओके यस, योर क्वेश्चन वाज वेरी लॉजिकल कि इसमें आपको बहुत ज्यादा लिखना है। ओके तो नोट्स हम पढ़ाई के लिए यूज करेंगे, और ये पीपीटीज है ना, ये आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए यूज करोगे। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि इस पर यस सिर्फ यस हाइलाइट्स है, पीपीटीज पे सिर्फ हाइलाइट्स होंगे, और मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो once my explanation is over, I will circulate the notes as well with you. So notes पर आप फिर से रीड करना है, और रिवीजन के वक्त आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, पीपीटीज देखने पड़ेंगे। एंड गाइस, टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माय सीक्रेट। मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि आपने इतना स्टडी कैसे किया, आप 18 घंटे पढ़ती थी? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं। Guys, number of hours do not matter at all. जो भी आप कुछ नया सीखते हो, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। जो भी आप कुछ नया सीखते हो, यू हैव टू रिपीट इट, रिवाइज इट विद इन 24 आवर्स ऑफ पीरियड। मतलब चलो आज आपने चाय बनाना सीखा ना मम्मी से, कल सुबह इमीडिएटली आप मम्मी को फिर से चाय बना कर